So, the number one problem that comes to people when they're trying to address something, या फिर when they're trying to talk about something, when they're talking about life specifically, that everything seems great and fun. But if you remove this simple aspect, then in the long term, your life could ruin itself. Because we have what we have seen now, what we have seen in our lives basically. For the first 20, 21, 22 years, everything was fine. For the first 22 to 23 years, everything was fine. But after that, conflict started appearing out of nowhere in our personal lives. And constant conflicts appear out of nowhere. It wasn't like कि कोई चीज़ रुक रही थी. आपको शुरुआत के 22-23 साल ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है. You started having you have your own mental delusions about how you approach your life. कोई अपना अपना ड्रीम लेके चल रहा होता है. But the chain of conflicts that has appeared after the age of 24 and 25, I am talking to people, several people right now, and I'm seeing uh, the changes that has happened in their personal lives, in their families, and everything. And what I'm seeing is uh, either it's there ignorance or there was no ignorance. But I don't think there was any ignorance. Yes, we were children, but it was not complete ignorance. And certainly all the conflicts have started appearing in our personal lives at the age of 24, 25, among friends, family members, and whatever. And these conflicts had no basis. Like the topic was always there, but the conflict regarding the topic was not there. And that's what we think about. So why the conflicts are happening after so many long time. Why the conflict is happening? And then I think, well, maybe it is because our positive thinking delusion that we have been believing for 22 years, 23 years. We haven't been talking about something relevant for 23 years, and that led to the conflicting beliefs that was surrounded by the positive lie. So positive lie always led to the conflict in the long term, and that's what really happened with most of us, and that's where what is currently happening right now, because the conflict is not going away. Once it appears in your life, it doesn't go away, and it's tried to corner you into something that you are not. And this is what you need to understand, that okay, mind is not something that you have understood completely. It is something else. You allowed yourself to be deluded for 22 to 23 years. That allowed nature to act, because that's how nature acts. It keeps you into delusion. It first keeps you into delusion, then put your delusion into your life, and then allows the conflict to be surrounded by you, to you. And that's what happens slowly at once, because initially people were not giving so much attachment to things. I think lots of attachment has also caused these delusions to act out, but it shouldn't have happened this way. We haven't been thinking of we haven't predicted these outcomes in our personal lives, because we were thinking that everything will happen in the right direction only, in the right context only, in the right way only. But as even on the social media, there are lots of negative conflicts and lots of problems. Because in social media there are only two things happening. There are lots of positive delusions that are being sold, like the couple dreams that are being sold, and lots of things. And or there is negative concept, extreme negative concept. There is no moderate way of living that is being marketed on social media. There's no moderate way of living your lifestyle, living your personal life. There's no such thing as that. And that is what the problem is, कि आप लोग देख नहीं पा रहे हो कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, कि दिक्कत कहाँ से आ रही है. आप पॉजिटिव डिसीजन में इतना टाइम सोचोगे तो नेचर को मौका मिल जाता है एक्ट करने का. और नेचर हमेशा नेगेटिवली एक्ट करना चाहती है. नेचर कभी नहीं चाहती आपसे पॉजिटिवली डील करना. नेचर पॉजिटिव अगर डील कर रही है तो वो एक इल्यूजन है. अगर प्रकृति आपसे एक अच्छा व्यवहार रखने की कोशिश कर रही है तो वो एक धोखा ही है, वो सच है ही नहीं. And that's what actually happened. Nature tried to act its way. Nature tried to hamstring you into something that you're not, and it allowed lots of problems into your personal life. And there's nothing you could have done about it, but it just nature
किसी तरह से आपको अगर एक बार जकड़ लेती है तो वो आपको छोड़ना नहीं चाहती पर्सनली, वो अटैचमेंट्स के थ्रू आपको छोड़ना चाहिए। जैसे आप दूरी बना लोगे ना, नेचर से अपनी दूरी बना लोगे तो पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू आपको वापस लाएंगे। वैसे पास आ जाओगे ना तो निगेटिव थॉट्स के थ्रू फिर आपसे लड़ाई करेंगे। एंड दैट्स हाउ द नेचर एक्ट्स। नेचर इज़ वेरी 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 डिमोनिक आई से, बट इट जस्ट दैट इट इज़ कि भाई नेचर आपका पॉजिटिव थॉट्स भी आपके अगेंस्ट इस्तेमाल करती है। आपका नेगेटिव थॉट तो आपके अगेंस्ट इस्तेमाल होता ही है, बट पॉजिटिव थॉट्स भी काफ़ी हद तक आपके अगेंस्ट ही इस्तेमाल होता है। और ऐसा ही होता है थ्रू आउट हिस्ट्री, हर किसी के साथ ऐसा ही होता जा रहा है, हर किसी इंसान के साथ। और इसलिए पॉजिटिविटी को ज़्यादा बेचना सोशल मीडिया पे, मोटिवेशन पॉजिटिविटी को बेचना बहुत ख़तरनाक होता है लॉन्ग टर्म में। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप अगर एक मॉडरेट इमोशन रखो, लेकिन सच होना चाहिए, दैट्स व्हाट द थिंग है। कुछ टाइम तक ऑफेंड करे, मेरे टाइम तक सही दिशा में चला जाए। या तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, बहुत ज़्यादा निगेटिव होगा, देन यू आर सब। क्योंकि फिर आप सोचोगे कि पॉजिटिव बहुत ज़्यादा जाओगे तो बहुत एक्सपेक्टेशन बढ़ा लोगे, और एक्सपेक्टेशन पूरी होगी नहीं, आप डायरेक्टली डाउनफॉल हो जाओगे निगेटिव में। और जहाँ नेगेटिव में डाउनफॉल होगा तो खत्म। और नेगेटिव की तो बात ही अलग है, एक बार नेगेटिव की दिमाग में डाल दी तो वो तो फैलती रहती है बस। नेगेटिव की ज़रूरत ही नहीं है पॉजिटिव की, पॉजिटिव तो नेगेटिव ले जाता है आपको। पॉजिटिव पता है क्या, पॉजिटिव करते रहेगा तो बंदा अच्छा कर ले जाएगा। पॉजिटिव को पता है कि पॉजिटिव आपको एक धक्का देकर नेगेटिव में ले जाता है, एक्सपेक्टेशन हटा के। एंड दैट्स व्हाई वी नीड द मॉडरेट वे ऑफ थिंकिंग। इट्स वेरी क्रूशियल टॉपिक इन माय ओपिनियन, क्योंकि हम यहाँ बात डिल्यूजन की कर रहे हैं। डिल्यूजन जो कि प्रकृति की तरफ से आता है, जो नेचर की तरफ से आता है, डिल्यूजन की बात कर रहे हैं। हम लोग किसी छोटे मोटे टॉपिक के बारे में नहीं बोल रहे कि कोई बंदा टॉक्सिक है तुम्हारी लाइफ में, कोई लड़का टॉक्सिक, कोई लड़की टॉक्सिक है, या कोई रिलेटिव टॉक्सिक है, या कोई माँ बाप टॉक्सिक है। इस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग थोड़ा टॉपिक उठा ही नहीं रहे, हम लोग सीधा वहाँ अटैक कर रहे हैं जहाँ पे प्रॉब्लम है। हम सीधे उस चीज़ के बेसिस पे बात कर रहे हैं। हम आप जब नेचर की बात करेंगे तो आपका अपनी साइकोलॉजिकल सिनेरियो भी सामने आएगा, आपकी अपनी साइकोलॉजिकल रियलिटी भी आपके सामने आएगी। अगर हम नेचर की बात करेंगे तो आप कोई मतलब रूल के जुड़े हुए नहीं होंगे। आपको खुद को ऐसे नहीं सोचते हैं कि मैं तो बहुत सुधरा हुआ हूँ, मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, मतलब नेचर परेशान कर मुझे। आप भी नेचर का पार्ट है, आप भी खुद को परेशान कर रहे हैं, पहली बात। तो इट जस्ट फैक्ट कि आपको ऐसे सोचना होगा कि नेचर एक प्रकृति एक गेम खेलती है, मगर तो ये सीधे नहीं बैठते। प्रकृति एक गेम खेलती है, इमोशंस खेलते हैं। और वो इमोशंस पॉजिटिव हैं, निगेटिव हैं, प्रकृति की मर्जी। उसको जो ऐसा आपका लगेगा कि जिस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है इसको, वैसे करेगी। अगर आप बहुत पॉजिटिव होंगे तो निगेटिविटी से करेगी, और एक्सट्रीम केस में बहुत पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन लगाई करेगी, जो कि बाद में पूरी नहीं होगी तो आपका तो निगेटिव चल जाएंगे। निगेटिव में अगर फिर तो निगेटिव तो अपने आप ही कंसिडर कर लिया जाएगा। और दैट इज़ समथिंग नॉट कोई बहुत आधुनिक बात नहीं बोल रही मैंने कि नेगेटिव लोग बढ़े जाते हैं, अपने आप ही बढ़ जाते हैं। आपको मेहनत ही नहीं करनी है, और थोड़ा दिमाग में कुछ डालना है निगेटिव का, वो तो वही अपने आप चेन रिएक्शन तरह फैलता रहता है। पॉजिटिव थॉट्स की बात ज़्यादा करेंगे। पॉजिटिव थॉट्स को मैं डिल्यूजन इसलिए बोलता हूँ कि लोग आसानी से यकीन कर लेते हैं पॉजिटिव थॉट्स, आसानी से पॉजिटिविटी को अपने लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं। दूसरी खुशियों में खुशियाँ लेना अच्छी बात, तो वही करूँगी। इफ़ यू वांट टू बी पॉजिटिव, बी हैप्पी विद अदर पीपल्स वेल बीइंग, आई मीन दैट इज़ जेन्युइन पॉजिटिविटी। बाकी तो डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप के डिलीजन में हो। तो पॉजिटिविटी विद अदर पीपल्स हैप्पीनेस इज़ कम्प्लीटली ए ट्रू पॉजिटिव नेचर। वो कभी निगेटिव एक्सपेक्टेशन में नहीं जाता है। जो निगेटिव एक्सपेक्टेशन में जाता है वो आपके अपने पॉजिटिव थॉट से जो आप अपने लिए देखते हो। एंड दैट इज़ बेसिक द प्रॉब्लम इज, एंड दैट्स व्हाई ऑल द प्रॉब्लम्स विल अराइज इन द फ्यूचर। कि आप जितना डिवीजन में मानोगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी, और इतनी प्रॉब्लम बढ़ेगी आप उतना अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाओगे। क्योंकि आप जब तक कॉर्नर ही रहोगे तो आपकी वॉइस ही बाहर नहीं आएगी। मैक्सिमम टाइम आप शांत ही रहोगे, ऑफिस में आप शांत हो, दोस्तों के बीच में बोला बोल नहीं रहे, अपनी फीलिंग्स बता भी नहीं रहे, ऐसा कॉर्नर हो गए। क्योंकि अगर बता भी रहे हो तो पूरी बात बता नहीं रहे हो, कॉर्नर ही बोलना मैं इसको। कॉर्नर होना मतलब ये नहीं कि कुछ बोल नहीं रहा, कॉर्नर होना मतलब ये भी है कि अपनी बात ही नहीं बता रहा, अपनी बात रख ही देना सामने वाला। एंड दैट इज़ वेरी क्रूशियल टॉपिक फॉर मी। भाई अपनी बात तो रखो, अपनी बात नहीं रखोगे तो लॉन्ग टर्म में आप ही नुकसान में। आप
के दोस्त अगर वैसे हैं जो मजाक उड़ाते हैं, मुझे लगता है कि मैक्सिमम दोस्त ऐसे होते हैं, जब चीज़ें होती नहीं आप अगर बता के देखो कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। और वैसे ही बात है कि प्रॉब्लम्स को थोड़ा डिस्कस करो आपस में, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करो, हैप्पी हैप्पी चीज़ डिस्कस ना करो। सबको अच्छा चल रहा है, सब मज़े में है, सब घर में सब सही चल रहा है, ये सब मत बोलो। रियलिटी बताओ अपने दोस्तों को, जो नहीं सुनता है निकाल फेंको, जो सुन रहा है उसे बताओ, अपनी रियलिटी बताओ लोगों को। और उस बेसिस बात करो कि ऐसे कॉमन टॉपिक क्या है कि हम लोग की प्रॉब्लम्स में कि हम लोग को डिस्कस कर सकें। क्योंकि अगर तुम्हारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी पर्सनल है, मेरी प्रॉब्लम हमारी मेरी पर्सनल है, तो हमारे इंटरेक्शन का मतलब क्या है? मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता कि तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम तुम ऑफेंड हो जाओगे, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं ऑफेंड हो जाऊँगा, कोई दूसरी कोशिश करेगा तो वही बात रहती है कि फिर कोई कॉमन टॉपिक है और वहीं पता लगाना है, एक कॉमन टॉपिक क्योंकि है और मिलेगा। अगर आप थोड़ा डिस्कस करोगे, आपस में बात करोगे, आपस में कॉन्वर्सेशन को आगे लेके जाओगे, then you will find there is lots of similarities among all of your problems and your sorrows, and that is where you need to find the predictable nature of। और वहाँ पे आपको प्रकृति दिखेगी, नेचर दिखेगा कि नेचर कैसे एक्ट कर रही है इक्वली प्रॉब्लम्स देने में आप दोनों की लाइफ में। और उस बेसिस पे आप एक यूनिटी बना सकते हो आपस में। दैट इज़ द ट्रूथ ऑन यूनिटी, दैट इज़ द बेसिक ट्रूथ दैट यू नीड। बाकी सब तो अलग बात है। ओके, थैंक यू, बाय।